Assalamu alaikum dear students. In the previous lecture I have explained you the chapter variation and classification, and in this recorded lecture specifically I am going to explain you the review questions of chapter variations and classifications. That is page number 14 of your book. The first question is, the chart below shows the eye colors of a group of students. There is a bar chart available in this question, and now part A is which eye color is least common. So in a bar chart you can see that the green bar is very low, showing very low, it's just 2 or 3 so 2 or 3%. So we can say that green eye color is the least common. Now the next is, name another human feature that shows discontinuous variation like this. So we can write any of the variation that shows discontinuous, any of the feature that show discontinuous variation, that is blood group, gender, shoe size, hair color, any of this is acceptable. Now come towards question number 2. The chart below shows the hand spans of a group of students. There is a bar chart available again. Now the part A, what percentage of students had hand spans of 22 centimeter or more? So we can say that the 38% of the students have the hand spans of 22 centimeter or more. Now part B, name two other human feature that show continuous variation like this. दो और ह्यूमन फीचर्स बताने हैं जो कंटिन्यूस वेरिएशन शो कर रहे हो, तो उसमें हम कुछ भी कंटिन्यूस वेरिएशन बता सकते हैं, जैसे हाइट, बॉडी मास, बॉडी हाइट है, बॉडी मास है, फुट लेंथ है, लिम्ब लेंथ है, and so on. Question number 3 is, the table below shows the variation in the color of population of beetles. There is a table available that is color. There are different colors. The black color is of 30%, dark brown 60%, and pale brown is 10%. Display the data on a frequency chart. तो इसका एक फ्रीक्वेंसी चार्ट है जिसकी मैं पिक्चर जो है वो अपलोड कर दूँगी. इसके बाद है बस इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रीक्वेंसी चार्ट ही बनाना है. दैट इज़ वेरी इजी. आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक जो बार चार्ट है वो बनाएंगे आप. इसमें ब्लैक कलर, डार्क ब्राउन कलर और पेल ब्राउन कलर से आप रिप्रेजेंट करेंगे. बहुत ही ईजी है. Now the next is question number 4. The table below shows how the lengths of a species of beetle varied. अब यहाँ पर डिफरेंट लेंथ्स भी लिखी है और फिर परसेंटेज ऑफ बीटल्स भी लिखी है, और इसमें भी हमें ये करना है कि जो डेटा है उसको फ्रीक्वेंसी चार्ट में शो करना है. इन दोनों फ्रीक्वेंसी चार्ट की जो पिक्चर्स हैं ये मैं आपको अभी शो करवा दूँगी ताकि आपको भी ईजी हो जाए. ठीक है, और इंशाल्लाह ताला ये आपको PDF फॉर्मेट में भी मिल जाएगी. Question number 5 is, the scientific names of two bears are given below. पोलर बेयर जो है उसका नाम है उर्सुस मेरिटिमस, और अमेरिकन ब्लैक बेयर जो है उसका नाम है उर्सुस अमेरिकानुस. पार्ट ए इज़ एक्सप्लेन वाई देयर सेकेंड नेम्स आर डिफरेंट. इनके सेकेंड नेम जो है वो डिफरेंट क्यों हैं? इनके सेकेंड नेम जो है वो डिफरेंट इसलिए हैं कि ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो ये बेयर्स ही लेकिन दो डिफरेंट स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं. दैट इज़ वाई इनके जो सेकेंड नेम है वो डिफरेंट है. पार्ट बी इज सजेस्ट वाई दे शेयर द सेम फर्स्ट नेम. ये सेम फर्स्ट नेम क्यों शेयर करते हैं? तो ये इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि ये दोनों जो हैं वो सिमिलर स्पीशीज़ हैं, यानी कि दोनों के दोनों बेयर हैं. ठीक है. अच्छा, एक्सप्लेन वाई स्पीशीज़ नीड स्पेसिफिक नेम्स. किसी भी स्पीशी को कोई स्पेसिफिक नेम क्यों दिया जाता है? तो उनका जो डिफरेंट नेम्स हैं, किसी भी स्पीशी को डिफरेंट नेम इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उनके एक डिफरेंट लैंग्वेज की वजह से. एक तो ये है कि और उसके अलावा जितने भी साइंटिस्ट हैं वो उनको ज़रूरी है डिफरेंट नेम, मतलब ये स्पीशीज़ को इसलिए डिफरेंट नेम देते हैं सो दैट दे कैन शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच स्पीशी के, एक पर्टिकुलर स्पीशी के बारे में उसकी जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो गैदर की जा सके. तो इसका आंसर ये होगा, स्पीशीज़ हैव डिफरेंट नेम्स in different languages. All scientists need to use the same name so that they can share information about each species.
Now we have question number 6. Cheetahs can run faster than any other animal. They are found in many parts of Africa. Explain how scientists could check that the cheetahs in separate groups belong to same species. ठीक है. So the answer is scientists could breed a male and a female cheetah from different parts of Africa. They could then attempt to breed their offspring to see if they are fertile. If the offsprings are fertile, the male and the female cheetah came from the same species. यानी अगर offspring मतलब आ जाती है या फर्टिलाइजेशन हो जाती है, इसका मतलब कि जो मेल और फीमेल चीता है वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं. Now question number 7 is a zedonx is the offspring of a female donkey and a male zebra. यानी zedonx एक एनिमल है जो फीमेल डंकी और मेल जेब्रा का ऑफस्प्रिंग है. ठीक है. पार्ट ए इज़ व्हाट नेम इज़ गिवन टू एनिमल्स लाइक द जेडोंग. इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है. तो इनको इसका एक पर्टिकुलर नेम होता है जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के वक्त भी कहा था. इस तरह के एनिमल्स को हाइब्रिड कहा जाता है और ये आगे से इनकी जो आगे की जो नस्ल होती है वो नॉन फर्टाइल होती है. इनके आगे कोई भी ऑफस्प्रिंग नहीं होती. So the answer is hybrid. Part B is explain why two zedongs will never produce offspring. तो इसका आंसर है, मैं अभी बता भी चुकी हूँ और इसका आंसर ये है zedongs have a female donkey as their mother and a male zebra as their father. The offspring of different species are always infertile. यानी डिफरेंट स्पीशीज़ के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो हमेशा इनफर्टाइल ही होते हैं. ऑलराइट, द नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पे कुछ डिफरेंट एनिमल्स हैं, 6 डिफरेंट एनिमल्स हैं जो शो किए गए हैं डायग्राम के थ्रू. और पार्ट ए है चूज़ 2 दैट आर इनवर्टिब्रेट्स. इनमें से 2 सेलेक्ट करने हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स हों. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑक्टोपस इनवर्टिब्रेट है और बीटल जो है वो इनवर्टिब्रेट है. यानी कि बी और सी जो है, यानी बीटल सी है और ऑक्टोपस बी है, ये दोनों इनवर्टिब्रेट हैं. अच्छा, व्हाट इज़ द सेम अबाउट द वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स के बारे में सेम क्या होता है. सेम वर्टिब्रेट्स की एक स्पेशल इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि सारे वर्टिब्रेट्स की हमेशा बैकबोन्स होती हैं. तो सेम ये है, ऑल द वर्टिब्रेट्स हैव अ बैकबोन. पार्ट सी ये है चूज़ 2 वर्टिब्रेट्स दैट आर रेप्टाइल्स. अब इसमें से चेक करके बताना है कि इसमें से कौन से 2 वर्टिब्रेट्स हैं जो कि रेप्टाइल्स हैं. तो रेप्टाइल इसमें एक तो है स्नेक और दूसरा है इसमें टर्टल. यानी ए और डी, स्नेक और टर्टल, ये 2 एनिमल्स हैं जो कि रेप्टाइल हैं. पार्ट डी इज़ डिस्क्राइब 2 फीचर्स दैट रेप्टाइल्स शेयर. यानी रेप्टाइल्स के कौन से 2 फीचर्स होते हैं. बहुत सारे फीचर्स होते हैं रेप्टाइल्स के, लेकिन हम कोई भी 2 लिखना है. तो एक तो ये है कि इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही स्केली और ड्राई स्किन होती है. ठीक है. सेकेंड ये कि ये हमेशा एग्स जो है वो लैंड के ऊपर ले करते हैं. इसके बाद दूसरा ये है कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और फिर ये ब्रीथ करते हैं लंग्स के थ्रू. ठीक है. तो इसमें से कोई सी भी आप 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, जितनी अवेलेबल हैं कुछ भी लिख सकते हैं. इट डजेंट मैटर.